بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آرمی چیف کا کھلا پیغام، شامت آ گئی ہے عمران خان صاحب کی، پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کی۔ کس بات پر اب شامت آ رہی ہے اور کیا ہوگا؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ وہ 6 ججز بھی پھنس گئے ہیں، خط والے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے کہ کیسے ہوگا، تحقیقات کیسے ہوں گی، کون کرے گا کون نہیں کرے گا، وہ ساری کہانی بھی ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی، اور وہ انجام بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ دوسری طرف ججز کو دھمکیاں بھی ملے جا رہی ہیں۔ وہ جو خط پہلے آیا تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو، اب لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بھی وہ خط آ گیا۔ اچھا، وہ ٹریک بھی کر رہے ہیں اس کو پیچھے جاتے ہوئے، جی پی او پنڈی تک تو پہنچ گئے ہیں کہ یہاں سے کچھ خط پوسٹ ہوئے تھے۔ مل جائے گا بندہ، وہ ریشما ہو یا ریشم ہو یا کوئی اور ریشم کے دھاگے بنانے والا ہو، جو بھی ہوگا وہ لگتا ہے کہ اب سامنے آ جائے گا۔ اور ان سب چیزوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کا قصور کیا ہے بیچارے کا۔ علیمہ خان صاحبہ، جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ ہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا قصور صرف اتنا سا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ان کی حکومت گرائی جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں کون سا قصور ہے؟ اور یہ کیا کمال کیا تھا انہوں نے؟ اپوزیشن نے اعلان کیا کہ ہم عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں، اور عدم اعتماد کی تحریک کا مطلب بڑا obvious ہوتا ہے کہ ہم ان کی چھٹی کرا کے اپنی حکومت بنا لیں گے۔ عدم اعتماد کی تحریک تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب ان کے پاس 51% ووٹ اپوزیشن کے پاس ہوں، جو عمران خان پر عدم اعتماد کرتے ہیں بطور وزیر اعظم۔ ان کی چھٹی ہونی تھی۔ اچھا، پھر وہ جو پارٹیاں 10 12 8 چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ان کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، جس میں ایم کیو ایم اور باپ اور ساری پارٹیاں تھیں، ان سب نے ایک ایک کر کے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم جا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں، ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ سو obvious کہ ان کی حکومت چلی جانی تھی۔ مطلب عمران خان نے اس میں کیا بتایا سوائے اس لطیفے کے، وہ کہ خاتون بڑی پہنچی ہوئی تھی کہ اس نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ کل گھر کا ایک فرد کم ہو جائے گا، اس کے بعد وہ بھاگ گئی تھی۔ تو اس لطیفے کے مطابق وہ بڑی پہنچی ہوئی تھی، تو اسی طرح عمران خان صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کا اس لطیفے سے بس اتنا صحیح تعلق ہے کہ اس طرح کی کہانی ہے۔ تو وہ تھا۔ تو اب علیمہ خان صاحبہ، مسئلہ یہ ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ پروپیگنڈا، جھوٹ، سارا کچھ بول لیا ہے، تو اب عمران خان صاحب تو پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو بتانا پڑتا ہے کہ کتنے افراد ان کی سیکیورٹی پر ہیں، کتنے کمرے 6 7 8 سیلز ان کو دیے ہوئے ہیں، کیسے کچن میں ان کے لیے اسپیشل کھانا بنتا ہے، اور وہ کچن جس میں کسی اور کے لیے کھانا بھی نہیں بنتا۔ ان عیاشیوں کے ساتھ رہنے والے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو باہر بیٹھ کے شور مچا رہی ہے، ان سب کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے بہت زیادتی ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، اور 900 بندے وزٹ کرنے والے 6 مہینے میں، اور وزٹس کا روسٹر وہ یا پلان بنانے والے 3 ان کے اسپوکس پرسن، اور عمران خان صاحب کی اپروول سے روزانہ کے پلان بن رہے ہیں۔ ان عیاشیوں کے ساتھ رہتے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ بہرحال زیادتی تو ججز نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ تو وہ 6 ججز ہائی کورٹ کے، جنہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں بڑا پریشرائز کیا جا رہا ہے، اگرچہ ان کے پریشرائز ہونے کے کوئی بظاہر ثبوت سامنے نہیں ہے۔ مطلب میں اس بات کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہوگا، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ اچھا، ہمارے یہاں ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور ممکن ہے آج بھی کسی سٹیج پر ہوتا ہو۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا انوکھا خط عجیب ہی کہانی سنا رہا تھا کہ ان کے عمل ان کے فیصلوں سے کانٹرڈکٹ کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے سنایا تھا کہ ان 6 ججز کے پاس وہ کیسز جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے حوالے سے تھے، ان میں انہوں نے کیا فیصلے دیے۔ 60-70% عمران خان صاحب کے حق میں تھے، 7-8% 10% ان کے خلاف ہو سکتے ہیں، اور باقی پینڈنگ ہے۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا تھا۔ اس کے لیے خط لکھا گیا، فل کورٹ اجلاس ہوا، پھر حکومت کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس پہ چیف جسٹس نے آج لائیو کاروائی میں براہ راست کاروائی دکھائی گئی، اور کاروائی بھی زیادہ تر اردو میں تھی تاکہ زیادہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ پروپیگنڈا تو بعد میں ہونا ہی ہے نا، وہ تو سارا چلتا رہے گا۔ انہوں نے کہا اس لائیو کاروائی میں کہ میں نے تو جو ملاقات کی وزیر اعظم سے وہ بھی خفیہ نہیں تھی، بڑی اوپن ملاقات ہوئی باقی سینئر موسٹ جج کے ساتھ، اور اس میں مشاورت ہوئی۔
सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कमीशन बनाना। आइनी सवालात वो साथ साथ पूछते रहे, आइन में क्या दर्ज है, आइन की क्या लिमिट्स हैं, आइन क्या अथॉरिटीज़ या क्या आज़ादियाँ देता है, क्या इख्तियारात देता है, ये सारी बातें उन्होंने कर ली। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे अहम ये था कि हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तसद्दुक़ जिलानी साहब से पूछा गया वो बनना चाहेंगे, क्योंकि 2 नाम डिस्कस हुए ना। और उसके बाद तसद्दुक़ जिलानी साहब से पूछा गया, तसद्दुक़ जिलानी साहब ने TORs मांगे, TORs दिखा दिए गए, उसके बाद उन्होंने ओके किया। लेकिन फिर वही तूफ़ान बदतमीज़ी, वो झूठा प्रोपेगेंडा जिसके लिए PTI मशहूर है, वहाँ पर गोएबल्स का भी ज़िक्र हुआ। ये है तो इत्तफ़ाक़िया बात, इस किस्म के वाक़यात में गोएबल्स का ज़िक्र आ जाता है, लेकिन यहाँ इसकी सिग्निफ़िकेंस ये है कि गोएबल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, कम्युनिकेशन कह लें चलें। तो यहाँ भी समझ रहे हैं ना आप गोएबल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एक ही काम आता है उन्हें, प्रोपेगेंडा, सच झूठ, बल्कि सच होता कहीं शायद कहीं आ भी जाता हो गलती से, वरना जितना झूठा प्रोपेगेंडा वो कर सकते हैं PTI वाले, इमरान खान साहब की टीम, इमरान खान साहब की क़यादत में, वो हम सारे देख चुके हैं। तो उसकी बेस पे तसद्दुक़ जिलानी साहब के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा हुआ। अच्छा, ये वही तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं जिन्हें वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द किया गया था PTI की तरफ से एक ज़माने में, मतलब बड़े अच्छे मामलात थे सारे। तो अब उनको गालियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल तसद्दुक़ जिलानी साहब ने माज़रत कर ली उस प्रोपेगेंडे से मुतासर होके या उस प्रेशर में आके, या व्हाटएवर रीज़न, फॉर व्हाटएवर रीज़न उन्होंने कहा नहीं जी मैं नहीं अब करना चाहता। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस बची हैं उस पर उन्होंने बात की। 7 जजेस अवेलेबल थे इस्लामाबाद में, उनके साथ केस की वो कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन 29 तारीख को, 29 अप्रैल को जब दोबारा केस की समाअत होगी तो शायद फुल कोर्ट ये समाअत करे। जजेस फंस इसलिए गए हैं कि चीफ जस्टिस बड़े क्लियर हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इख्तियार तो हाई कोर्ट के पास भी था, तो सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने की क्या ज़रूरत थी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का भी उन्होंने बड़ा ओपन कर दिया मामला। उनका बताएं जी, पढ़कर बताएं कि उसके क्या जुरिस्डिक्शन है, उसके क्या इख्तियारात हैं। उसमें तो ये आता ही नहीं है। लेकिन बहरहाल अब चूँकि सुओ मोटो हो गया है, अब अदालत ने सुनना है, तो उनसे सवाल ये भी हुआ है कि उन्होंने खुद इस पे तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की, या कोई भी कार्रवाई जो वो कर सकते थे वो क्यों नहीं की। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उन जजेस पर होगा जिन्होंने ख़त लिखा है, और अब आर या पार, यानी अगर तो वो साबित कर देते हैं कि सो एंड सो ये कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने प्रेशराइज़ किया, तो आप यकीन मानिए वो कैरेक्टर्स गए, फिर अब कार्रवाई हो जानी है। अब इससे कम पे कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई ऐसा सबूत ना मिला कि उन्हें कोई प्रेशराइज कर रहा था, तो फिर खत लिखने वाले भी समझ गए ना आप, अभी ताज़ा हुए हैं। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा केस, जब ये इसकी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा, और फिर वही होगा जो गुज़श्ता मरतबा हो चुका है। तो ये लोग तो गए हैं फंस, लेकिन जजेस को दूसरे तरीके से धमकियां देने का सिलसिला चल रहा है, और वो है खतूत के ज़रिए। अच्छा, याद रखिएगा कि वो जो प्रेशराइज़ करने वाले ना, वैसे बज़ाहिर ये लगता है, मतलब ज़ाहिर मैं ना किसी की एडवोकेसी कर सकता हूँ, ना किसी के वो कर सकता हूँ कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन वो जो धमकियाँ देने वाले या प्रेशराइज़ करने वाले हैं वो ख़त नहीं लिखते हैं। अब तहरीक वो नामूस पाकिस्तान के नाम से एक ख़त जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, हमारे पास भी आया है। वो खौफनाक सी शक्ल, खोपड़ी और हड्डियाँ ये जो बनी हुई हैं, और बीच में नाम भी लगा दिया है, तहरीक नामूस पाकिस्तान। समझ गए ना कि किससे मिलता जुलता सा नाम है। बहरहाल मसला ये है कि इस ख़त में कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट और अदालतें काम नहीं कर रही, ठीक नहीं कर रही, इंसाफ नहीं दे रही, ये सारी बातें करने वाले हैं कौन लोग? ये जो उसमें पाउडर और ये धमकी वाले खतूत जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिले, फिर लाहौर हाई कोर्ट को, फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ये सब जगहों पर जो आ रहे हैं, ये लोग भी ट्रेस हो जाने हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अब तक जो इतलात आ रही हैं वो ये कि फर्स्ट लेटर जो आए थे उसके लिए शायद पिंडी GPO तक लोग पहुंच गए हैं, उसको ट्रैक डाउन करते हुए कि वहाँ से शायद पोस्ट हुए थे। अब वहाँ से थे, ये रेशम थी, रेशमा थी, कोई रेशम था, कोई रेशम के धागे थे, पता नहीं क्या थे वो, रेशम के धागे से जो खींचे चले आते थे। ये लगता है कि अब वो धागे अपने दूसरे सिरे की तरफ पहुंच जाएंगे या ले जाएंगे वो धागे जो हैं। तो ये सारे लोग सामने आने हैं, क्लियर होने हैं, क्योंकि
हुकूमत का, अदलिया का, इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज का रवैया बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि जनाब हमारी तरफ से कोई वो ढील नहीं होगी, आ जाएँ फिर, आएँ मैदान में। और उसकी बड़ी मिसाल आज आर्मी चीफ़ की सदर पाकिस्तान से मुलाकात है। आर्मी चीफ़ सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी से मिले हैं, प्रेस रिलीज़ इशू हुई है, जिस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, तफ़सीलात के मुताबिक बाकी सारी चीज़ें तो दहशतगर्दी, जो कि एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का, नो डाउट एक बड़ा मसला है दहशतगर्दी, उसके हवाले से बात हुई। लेकिन जो सबसे अहम बात जो मुझे लगता है कि जो सदर पाकिस्तान से जिसका बराह रास्त ताल्लुक है, वैसे तो सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर हैं आर्मी के, तो उनके ऑपरेशंस वो सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन सियासी नुक्ता नज़र से अगर देखें तो सबसे अहम बात यह है कि उन्हें बताया गया कि एक मखसूस जमात और उससे वाबस्ता अफराद जो हैं वो इदारे और उसकी क़यादत के बारे में सियासी, अपने ज़ाती सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनको इंसाफ के कटारे में खड़ा किया जाएगा, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये बड़ा एक क्लियर मैसेज है। अच्छा, वो मखसूस जमात है कौन? अब उस टेक्स्ट से हटकर अगर हम बात करें जो वहाँ की रिलीज़ आई है, पीटीआई। पीटीआई वाले अपने मुफाद के लिए, वो आज की बात नहीं है, शुरू से उनका यही चल रहा है। अच्छा, वो तो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लोग हों या किसी और हादसे में शहीद होने वाले लोग, वो तो उनके भी खिलाफ उन्हें भी गालियाँ बक रहे होते हैं, सिर्फ़ अपने मुफादात के लिए। उन्हें सिर्फ़ अपना मुफाद चाहिए और उन्हें किसी चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। तो उन सब के लिए आर्मी चीफ़ की सदर से मुलाकात और उसके बाद ये बयान रिलीज़ करना बड़ा क्लियर पैगाम है कि कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी का जो सियासी रवैया है पार्लियामेंट के हवाले से कि पार्लियामेंटेरियंस का और सियासी जमातों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सियासी जमातों को और सियासी रहनुमाओं को, तखरीबकारों को और दहशतगर्दों को नहीं। दहशतगर्दों और तखरीबकारों से इस तरह से दोस्तियाँ करने के बजाय उनसे डील करने का मुख्तलिफ तरीका होता है। उनसे उसी तरह से डील करना पड़ेगा जो बात या जो ज़ुबान उन्हें समझ आती है। दुआ ये है कि ये बदअमनी, ये इंतशार, ये ख़त्म हो, ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हों, जो दहशतगर्दी की लहर है वो ख़त्म हो, हमारे मसाइल हल हों, काम आगे चले। जो सीपैक के मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, वो बिजली के और डैम्स के इश्यूज़ पे जो काम रुका हुआ है, वो कुछ जगहों पे शुरू भी हो गया है दोबारा, सब जगहों पे चलना चाहिए। लोगों की जान और माल की हिफाजत हो, मुल्क में अमन व अमान हो, सियासी इस्तेहकाम हो, और ये दोनों चीज़ें, अमन व अमान और सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम की तरफ हमें लेके जाए और हम, मेरे, आपके और पाकिस्तान के मसाइल हल हों। शुक्रिया।